1000 रुपया लैके फिर हथकड़ी खोलनी है। 5-5 लाख की ये दिहाड़ियाँ अब लगा रहे हैं पुलिस वाले थाने में। 50,000 का चलान कर दिया। ये बहुत जालिम लोग हैं। 5 महीने होगा, 1 महीने होगा, गाड़ी है कड़ी है। कमाई इतना नहीं है, टैक्स बहुत ज्यादा है। ये मरियम के पास भी ऐसा लाइसेंस नहीं है जो हमारे पास है। ये लाइटें मोटर वाले कहते हैं जी लगाओ, और जो नीचे ट्रैफिक वार्ड वाले हैं पीरा फोर्स के दूसरे वगैरह जो है डॉल्फिन वगैरह, वो कहते हैं ये क्यों लगाई है, जायज़ लगाई हैं। ड्राइवरां नूं चंडा वजन तो फिर ड्राइवरां तो करनी है। मोटरवे हमारे लिए सेफ्टी नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर के ट्रक कटा पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ड्राइवर हजरात ने अपने ट्रक खड़े कर दिए और हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल की वजह क्या है और उनके क्या मुतालबात हैं, ये आप जानेंगे आज की वीडियो में। कितने को पैसे कमा लेंदे हो जेड़े कि हुकूमत ने कहा कि 15,000 रुपये जुर्माना तो देना पड़ेगा? साडी तनख्वाह जेड़ी ना 15,000 रुपए है ड्राइवर दी। 15,000 रुपये तनख्वाह है। तनख्वाह है, बकाया टिप आउंदी साडी उत्ते 500 मिले 1000 मिले। ये बकाया जेड़ा चलान चुन हुंदा है मालकां दे खाते हुंदा। चलान मालकां दे खाते होंदे ते फिर हड़ताल किस चीज़ दी, जो चलान मालकां दे खाते? हाँ जी, मालकां दी गड्डी होंदी ना, ਉਹਦੇ ਚ 3000 ਬੱਚੇ 4000 ਫੇਰੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ, ਉਹ 15000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ। ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਤਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇਹਦੀ ਪੈਸਾ ਮੰਗਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਇਹ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ? ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡਾ ਵੱਜਣ ਤੇ ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਚੰਡਾ ਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੋਟਰਵੇ ਵਾਲੇ ਕਿਤਨੇ 101 ਵਾਰ ਮਰਿੰਦੇ, ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਜੈਨੂਇਨ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਚੱਲ ਚੰਡਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਡਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਵੇ? ਬਸ ਇਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਕੈਤੀ ਕਰੀਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਚੋਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੱਪਦੇ, ਤੁਰਾਵੀ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਲੱਗੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਓ ਫਿਰ ਹੱਥਕੜੀ ਖੋਲਾਂਗੇ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹੱਥਕੜੀ ਖੋਲਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਹੱਥਕੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਣੀ, 500 ਮੁੰਸ਼ੀ ਨੇ ਲੈਣਾ, 500 ਇੱਥੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਿਆਂਗਾ। 40,000 ਬੰਦੇ ਤੇ ਭਰੋ, 10-12,000 ਰੁਪਇਆ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ? ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ 99 ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 26-27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੰਡਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਬੜੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਚੰਡਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ। ਅੱਛਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਆਣਾ, ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗੱਡੀ ਡਾਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਰਵੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਰੇਗਾ ਗੱਡੀ ਰੋਕ, ਆਪ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਤਾਂ ਚੰਡਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ? ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਸੁਣਨੀ, ਕਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਡਾ ਵੱਜਦੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਘਟਾਓ, ਇੱਕ ਹੈ ਕਾਲੀ ਵਰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਬਚਾਓ, ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀਆਂ ਹੀ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਸਾਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਕਾਲਾ ਇਹਨੇ ਤਾਂ। 500 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਆਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਟਰਵੇ ਤੋਂ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਨਾਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਹੱਥ ਹੀ ਫੜਾਓ ਜਾਓ ਜੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ, ਭਾਵੇਂ 1 ਨੰਬਰ ਹੀ ਮਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ। हमें कोई ना कोई दफ़ा ला के इसकी बदतमीज़ी की थी, इस गड्डी नसाई अंदर। लाइसेंस भी है, गाड़ी के कागजात भी पूरे हैं, लेकिन इन्होंने सब पुलिस वालों को और हैंड ओवर कर दिया है। वो हमें पकड़ते हैं, बोले FIR करनी है, थाने जाओ, हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड बनेगा। हम डर जब थाने ले जाते हैं तो 20,000 25,000 5-5 लाख की ये दिहाड़ियाँ अब लगा रहे हैं पुलिस वाले थाने में। इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता जब तक ये ऊपर से एक्शन नहीं लेंगे, तो उस वक्त हम जो है ना सही सेफ्टी हमारी नहीं होती। मोटरवे वाले रोड के ऊपर मोटरवे पे खड़े हैं, चलान दे रहे हैं, उनका काम है रात को जो है ना पेट्रोलिंग करना, हमारी सेफ्टी करनी, लेकिन वो खड़े होकर चलान दे रहे हैं, हमारी गाड़ियाँ भी लूटती हैं। डाकू मोटरवे के ऊपर हमारी गाड़ियाँ चोरी करते हैं, सामान उतारते हैं, वो भी हमारे ऊपर जो बर्डन पड़ता है, कहाँ से हम दें? ड्राइवर किधर जाए? ड्राइवर तो मर गया ना, वैसे जहर दे दें।
इनको कम से कम ये बिल्कुल हया नहीं है। पिछले दिनों में हमारी गाड़ी से सामान उतरा, हमने 15 पे कॉल किया, उन्होंने बोला इधर तो डाकू नहीं है। 10 मिनट के बाद दोबारा फिर चोर जो है हमारी गाड़ी के ऊपर चढ़ गए। मोटरवे हमारे लिए सेफ्टी नहीं है। मोटरवे वाले खाली सिर्फ चलान देने के लिए। आप अब्दुल हकीम मुल्तान से आएँ, लाहौर की तरफ कम से कम 12 पिकटें लगी हुई हैं। हर 10 किलोमीटर के बाद खड़े हैं, साइड पे लगा दो, हर 10 किलोमीटर के बाद साइड पे लगा दो। हर 50 किलोमीटर पे हमें चलान है। किस चीज़ का चलान है? मोटरवे का हमने तो जो इसका ठेका नहीं लिया है ना कि हर 50 किलोमीटर के बाद। कहाँ का कानून है? पूरी दुनिया में नहीं है। 50 किलोमीटर के बाद जो है ना आप जो है ना उसकी नई जो है ना चलान होगा 50 किलोमीटर के बाद। एक चलान होता है वो दें। और अब अगर हमारे कागजात पूरे हैं, हमारी पूरी SOP है, फिर किस चीज़ का चलान देते हैं? फिर भी बस नीचे उतरते वो बोलते हैं ID कार्ड लिखाओ, अपना मोबाइल नंबर लगाओ, 1000 रुपया जमा करा दो जी, 10,000 जमा करा दो, 5,000 जमा। किस चीज़ का? ये सारी चोर बाजारी बनाई हुई है। हमारी गवर्नमेंट ने जो है ना बिल्कुल इनको फ्री हैंड, पुलिस को पूरा फ्री हैंड दे दिया। वो चलान तो अलग से बात है, ऊपर से वो लूटते भी हैं। हमारी गाड़ी ये अभी फिटनेस है। फिटनेस आखिर गवर्नमेंट ने जो हम फिटनेस करवाते हैं, गाड़ी कंप्लीट उसकी SOP है तो वो फिटनेस होती है ना। रोड के ऊपर निकलते हैं, वो खड़ा होता है, वो ज़ोर से पाँव दबाता है। कौन सी डीजल गाड़ी है जो धुआं नहीं मारती? यकदम उसको रेस देते, बोलो आपका धुआं है भाई, 2000 का चलान है, या 1000 हमें दे दो, या 2000। हम अपनी जेब से तो नहीं देंगे, हम मालिक के खाते में डालेंगे। मालिक हमें बेरोज़गार कर देगा, बोलेगा जाओ भाई घर। वो हमें बोलते हैं कि भाई आपका क्यों चलान इतना है? अभी इस भाई का 10,000 का चलान, कसम से रोना आ गया। 10,000 रुपया पूरे हफ्ते में गाड़ी नहीं कमाती। और 10-10 हज़ार के हम इस ज़िले में लाहौर में करवाएंगे, शेखुपुरा अलग ज़िला है उसमें अलग करवाएंगे, आगे फिर और ज़िला है उसमें अलग। ये 40,000 इसका किराया नहीं है, 50,000 जो है ना इसका हम चलान भर के चले जाएंगे। क्या फ़ायदा हमें? यानी कि मिसाल के तौर पर आप लाहौर से निकलें, शेखुपुरा की तरफ जाएं, गुजरांवाला की तरफ, आप झेलम तक पहुंचेंगे तो आपको कितने चलान देने पड़ेंगे? सर जो झेलम तक जितने ज़िले आएंगे सब में इसका चलान होगा। हर ज़िले का अलग चलान है। मोटरवे के ऊपर हर 50 किलोमीटर के बाद चलान है। और GT रोड के ऊपर आप जाएंगे तो वहाँ भी जो NHA है, NHA हमें 50 किलोमीटर के बाद देती है। जो वार्डन है, हर ज़िले में वार्डन जो है वो अपने ज़िले का अलग से चलान देता है। अमूमन दुनिया में हम देखते हैं कि जी कहा जाता है कि हर 15 किलोमीटर बाद एक मैकडोनल्ड आता है, ठीक है ना। दुनिया के अंदर एक फूड चेन है ना मैकडोनल्ड, वो आता है। तो यहाँ पर हर 50 किलोमीटर बाद आपके पास चलान आता है। 50 किलोमीटर के बाद चलान भी आता है। और जो इन्होंने हमें रेस्ट एरिया दिए हुए हैं, वहाँ जो बाज़ार से हमने एक चिंगम लेनी होती है ना 10 रुपए की, उस रेस्ट एरिया में वो 90 रुपए की मिलती है। वो पता नहीं कौन सी जो है ना ये बाहर से इम्पोर्ट करते हैं कि वो 90 रुपए की हो जाती है। ऐसी मोटरवे हमें दी हुई है। आपको ये मेरा ख्याल है अमीर आदमी होंगे, अरबोपति लोग होंगे, या फिर मंशियात का काम करते होंगे कि आपको हर जगह 50 किलोमीटर के बाद चलान दे रहे हैं। गाड़ी बड़ी गाड़ी है ना, हम इसका टूल प्लाजा भी सबसे ज़्यादा भरते हैं, चलान भी हम सबसे ज़्यादा देते हैं। रोड के ऊपर, मोटरवे के ऊपर हमारी अगर गाड़ी जो है खड़ी हो जाए, कोई भी जेन्युइन कोई काम पड़ जाए, इसको ये बंद हो गई है, हम 130 पे कॉल करते हैं। हमारे पास कोई वर्कशॉप नहीं आती, हमारी कोई सेफ्टी नहीं है। एक कार वाला ना उसके पास टोकन है, ना उसके पास लाइसेंस है, वो सिर्फ कार के ऊपर बैठा है। यह अशराफिया है। उसकी गाड़ी का टायर पंचर होता है तो जो मोटरवे वाला है वो खुद जो है ना उसका टायर जो है ना चेंज कर रहा होता है। हम इंसान नहीं है, वो इंसान है, सिर्फ कार वाला इंसान है, बाकी जो है नहीं है। तो बेहतर है ये खड़ी हैं तो चला ले मईशत अपनी। ये किस तरीके से चलाते हैं? ये रीढ़ की हड्डी होती है मुल्क के लिए। अगर ये बंद होगी तो इनका सब कुछ बंद हो जाएगा। इंशाल्लाह ये बंद रहेंगी जब तक ये हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे, ये नहीं खुलेंगी। अगर ये मुतालबात आपके 6 महीने नहीं मानते, साल नहीं मानते, फिर नहीं माने भाड़ में जाए, हम अपनी जेब से तो पैसे नहीं देंगे। बेहतर तो ये है ना, खड़ी तो है ना, हम अपनी जेब से पैसे तो नहीं दे सकते। हम अपने घर से जो है ना बच्चों को बेच के इनको तो नहीं ला के इनका खजाना पूरा करें, हम नहीं कर सकते। अभी जब आजकल आप काम नहीं कर रहे, हड़ताल पे हैं, तो जब बीवी बच्चों से बात करते हैं या बीवी बच्चों के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं वो? क्या करेंगे बच्चों के लिए? बच्चे हमारा मुंह देख रहे हैं कि बाप आएगा, वो हमारे लिए कोई चीज़ लेके आएगा 15 दिन, महीने के बाद। हम तो 3-3 महीने रोडों के ऊपर रहते हैं। 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद घर गए तो कोई चीज़ भी हमारे पास नहीं है। तो बच्चों को क्या मुंह दिखाना? उससे बेहतर है ये खड़ी है ना, बच्चों के पास रहेंगे। तस्वीरें चलाने वाली वो दिखा दे करेंगे, बेटा ये देखो ये कमा के लाया हूँ। क्या कमा के लाना? वहाँ कोई भेड़ बकरियाँ ले लेंगे, 2-2, 4-4 वो पालेंगे। हाँ सही बात है, वो कर लेंगे, वो बेहतर है।
अगर हमारे पास कोई एक कनाल हमें कोई जगह दे देगा, उसमें कोई जो है ना खेती बाड़ी शुरू कर लेंगे, एक कनाल में कर लेंगे, कुछ सब्जी बीज लेंगे, वो बेच लेंगे, वहीं बेच लेंगे। तो फिर हुकूमत को क्या कहेंगे आप? हुकूमत को हम यही कहते हैं कि होश के नाखल लें। मैं कल ठोकर से आ रहा था तो 25-30 गाड़ियां जो है उन्होंने साइड पे खड़ी की हुई थी। उसके बाद उन्होंने सब गाड़ियों को जो है ना वो जुनाह अड्डे पे बैक साइड, जुनाह टर्मिनल जो है उसकी बैक साइड पे लगाई हैं। फिर उसके बाद सब की चाबियां ले ली हैं उन्होंने। फिर वो कहने लगा कि आरटी सेक्रेटरी आएगा तो वो आपके चलान करेगा। वो सारे की सारी चाबियां उनके पास थी, वो लेके चला गया। 1 घंटे के बाद आया है तकरीबन। फिर उसके आते हुए उसने जो है सबके शनाख्ती कार्ड लिए हैं। किसी को ये भी नहीं पूछा कि बड़ी गाड़ी या छोटी है, क्या मसला है क्या नहीं। डॉक्यूमेंट्स भी चेक नहीं किए। एकदम ही उसने 13-13 हज़ार रुपये का चलान करना शुरू कर दिया। किसी का 20,000 का, किसी का 25,000 का। एक कंटेनर वाले था उसका 50,000 का चलान कर दिया। ठीक है, फिर ऐसे ही बस जलील किया हुआ है सब कोई। आपने जायज़ लाइटें नहीं लगाई हुई हैं फोग? नहीं सर, वो 50 किलोमीटर के बाद एक मोटरवे वाला रोकता है, वो कहता है कि भाई ये फोग लाइटें आपने नहीं लगवाई। अच्छा। तो हमने फोग लाइटें लगवा ली। दोबारा दूसरा 50 किलोमीटर के बाद रोकता है, वो बोलता है कि ये आपने क्यों लगाई हैं। हमें तो इस चीज़ की समझ नहीं आती। एक बोलता है कि लगाओ, एक बोलता है नहीं लगाओ। एक लगाने का चलान देता है, एक उतारने का चलान देता है। वो बोलते हैं आपके पास कोने कितनी, हम बोलते हैं 6, वो बोलता है नहीं आपके पास 8 होनी चाहिए, चलान दे दो। हम 8 रखी हैं तो वो बोलते हैं 8 क्यों रखी हैं, आपके पास 4 होनी चाहिए, उसके ऊपर भी चलान है। भाई ये मुल्क में कोई समझ नहीं आती कि हमारे ऊपर कानून कौन सा लागू है। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त कुछ पख्तून भाई मौजूद हैं जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी गाड़ियाँ जो सी ना वो खड़ी कर दी। इनसे पूछते हैं वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। अच्छा भाईजान, सारी दुनिया काम कर रही है और आप वेले बैठ गए, खैर? भाईजान ऐसा है, जो ये वार्डन वाला, ट्रैफिक वाला और मोटरवे वाला ये चलाने देता है। एक ट्रिप में ये 8,000-7,000 रुपये पेशावर से इधर लाहौर हम जब आते हैं ना, कोई चालान ये जब दे देगा तो फिर ये 10,000 कसम से महीने पे हम नहीं बच सकते, क्योंकि एक ट्रिप का मतलब ड्राइवर है, मालिक को देना है। गाड़ी में पर्क आ जाता है, जब वो काम आ जाए तो वो 1 रुपये भी नहीं बचता है फिर। अच्छा, एक ट्रिप का मतलब एक दिन है या फिर 2-3 दिन भी लग जाते हैं? नहीं, हफ्ता इधर हमारा लगता है। जब माल नहीं होता है तो हफ्ता इधर खड़े हो जाते हैं। जब माल मिल जाता है तो रात को हम निकलते हैं। जब माल नहीं होता है तो हफ्ता भी होता है, 2 दिन भी इधर खड़े होते हैं। यानी कि आप मिसाल के तौर पर 10,000 रुपया एक हफ्ते के अंदर कमाते हैं, ठीक है ना, और 10,000 रुपया आपने उनको दे दिया। हाँ, तो कुछ भी नहीं बचता है। जब मालिक को प्यार क्या बोलते हैं, बच्चों के लिए क्या ले जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, वो बदतमीजी भी करते हैं आपसे? या करता है वो। परसों मेरा साथ लाइसेंस भी बराबर है, कागज़ हर चीज़ बराबर है। और कांटी का पर्चे मैंने परसों गुजरावाले में उसको दिखा दिया, मोटर वालों को। फिर उसने फिर भी 1,000 रुपये चालान दे दिया ना। मैंने उसको बोल दिया हमारा गलती क्या है, रोड पर सीधा चलते तुमने रोका दिया है, ये सारा चीज़ मेरा साथ बराबर है। 1,000 रुपये किस पर देते हो, कोई चीज़ नहीं होता है तो फिर उस पर दे दो। तो उसने बोले बस मैंने बात भी नहीं करता है, बस कहता है तुम बात करते हो तो और भी चालान दे देंगे। 10,000 रुपये का चालान हो गया। ये ऐसे लोग है ना, इसका अपना पेट मानते हैं, गरीब लोग नहीं मानते हैं। ये ऐसे लोग है, ये बहुत जालिम लोग है। क्या आपने जुर्म किया था जो 10,000? 200 किलो का वजन ज्यादा हो गया। इसने मैं मेहनत किया, 200 किलो का वजन ज्यादा होते है, इतना जुल्म मत करो। 150 किलो का वजन सिर्फ हमारा भी है, हिसाब करो 80 किलो का वजन ज्यादा हो गया। अभी मुझे 10,000 रुपये को चालान दिए। मैं इसके बोझ अल्लाह से डर रखता हूँ। भाई तुम्हारा काम नहीं जा, मैं अल्लाह से नहीं डरता हूँ। 10,000 रुपये चालान दिए, बस मैं दिए। फिर काटा भी किए, फिर भी दिए। मैं अल्लाह से डर रखता हूँ, नहीं अल्लाह से नहीं डर रखता हूँ, चालान ले लो। 10,000 रुपये चालान दिए। आपकी गाड़ी कौन सी है यहाँ पे खड़ी हुई है? आपकी गाड़ी ये वाली आपकी गाड़ी खड़ी हुई है। इसके अंदर कितना आ जाता है, कितने टन का वजन इसके अंदर आ जाता है? इसका वजन छोड़ता है 18 टन 25 किलो छोड़ता है। हाँ, 18 टन 25 किलो। और आप उसे 100 ज्यादा थे? 100 ज्यादा होता है। उसे 100 वजन 106 किलो का हमारा वजन है। इसके में मेहनत भी किया है। हमारा घर में छोटा छोटा बच्चा है, हमारा घर में छोटा छोटा बच्चा है, उसका डर रखता हूँ। तुम्हारा घर में बच्चा नहीं है, तुम्हारा बीबी नहीं है, तुम्हारा माँ नहीं है, तुम्हारा बाप नहीं है, उसके बोझ हमारा बाप बाप नहीं है, बस तुम जुल्म मानते हो। 10 रुपये चालान ले लो, इस चीज़ में नहीं मानता हूँ। बस 10 रुपये चालान दिए, इसके मैं ऐसे किए तुम्हारा लाभ बच्ची तबाह करेगा, वैसे इस बयान किए, फिर वापस आ गया। 10 रुपये चालान दिए, बस ये जुल्म उसने मेरे साथ किए। एक चीज़ भी उसका नहीं मानते है। सब कुछ दिए। फिर उसने बोले कि आप वो जो गुटके होते हैं जो रोड पे लगाते हैं वो रख दो।
मैंने कहा यार वो भी हमारे पास है, फिर भी उसने 1000 रुपये चालान किया। मैंने बोला ये किस चीज़ का? वो कह रहे थे कि बस जाओ, 1000 रुपये का चालान है, इस पर कुछ नहीं होता। मैंने बोला कि आपको तो कुछ नहीं होता, हमारा तो दिहाड़ी है, उस पर मसला होता है। 5000 हम कमाते हैं, हमारा 5000 रुपये ट्रिप है। इस पे जब हम मालिक के पास जाएंगे तो वो कह रहे हैं कि यार आप बचत नहीं लेकर आए। मैंने बोला चालान हो गया। वो कह रहे कि सब नहीं लेते, आप लेते हो। मैंने बोला सब लेते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। एक बोलते हैं हमने नहीं लिए, जब उधर जाएंगे उसका अपना गाड़ी होता है, वो कह रहे हैं कि नहीं लेते। बस 5 महीने होगा, 1 महीने होगा, गाड़ी है कड़ी है। एक दिन के अंदर आप कितनी कमाई कर लेते हैं? हम तो इतना कमाई नहीं करते हैं भाईजान, जितना टैक्स अदा कर रहे हैं। कमाई इतना नहीं है, टैक्स बहुत ज्यादा है। कमाई किधर है इस गाड़ियों में? 15,000 अगर आपका चालान हो जाता है तो 15,000 रुपये दिन में कमा लेते हैं आप? नहीं, किधर कमाते हैं? 3000 रुपये दिन का नहीं बचता है गाड़ी को। 2 करोड़ की गाड़ी है, 3000 रुपये दिन नहीं बचाता है। अच्छा, मुझे दिखा, आपकी गाड़ी कौन सी? ये वाली गाड़ी है आपकी? ये गाड़ी है, ये वाली आपकी गाड़ी है? हाँ जी। मुझे ज़रा दिखाएं कि कौन कौन सी चीज़ आपकी पूरी है जिसके ऊपर चालान हुकूमत को नहीं करना चाहिए लेकिन वो कर देती है। सब ये चाचा बताएगा जी, चाचा बताता है। बताएं आप। हाँ, इधर आए। सारी ज़िंदगी जो हमने मजदूरी किए है वो नुस्खे हैं हमारे पास, जिस पर हमें चालान किया जाता है बगैर किसी वजूहत के। ये है कौन सी? ये पढ़ें ज़रा, ये ट्रांसपोर्ट कौन सा है? ये खैबर पख्तूनख्वा का परमिट आ गया। इस पर 10,000 रुपया खर्चा आया जी। ये पासंग है खैबर पख्तूनख्वा की, इस पर 8,000 रुपया खर्चा आया जी। ठीक है। ये पंजाब का परमिट है, इस पर 15,000 रुपया खर्चा आया जी। पंजाब का परमिट भी आपके पास है, खैबर पख्तूनख्वा का भी है? गलगित का भी है। और ये गलगित का है, इस पर भी 12,000 रुपया खर्चा आया जी। ये गिलगित का इसके ऊपर ये भी आपने परमिट बनवाया हुआ? जी हाँ, जी हाँ जी। ये अब बार बार कहते हैं धुआं धुआं, ये धुएं का ये परमिट है जी। ये भी 2,000 का है जी। और इसके अलावा आप क्या देखना चाहते हैं इनसे पूछें। ये आपके पास इसको इंश्योरेंस कहा जाता है। अच्छा, ये इंश्योरेंस है? ये इंश्योरेंस भी मौजूद है? ये इंश्योरेंस ही मौजूद है। बाकी इनको हम मार दें तो वो एक बात रह गई है, तो बाकी इसमें कोई चीज़ बाकी नहीं रही। ये है टोकन कापी। अच्छा, जिसका हम उसको साल को लामहदूद टैक्स अदा करते हैं। हाँ जी। इसके अलावा और इनको क्या देना चाहिए? लाइसेंस अगर देखते हैं, ये गिर गया कागज आपका। सबर 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 लेकिन सबर रखो। ये पक्का है आपके पास? लाइसेंस दिखाता हूँ ना जाने। ये लाइसेंस है जी। ये मरियम के पास भी ऐसा लाइसेंस नहीं है जो हमारे पास है। उसका बाप तो उसका चाचा तो वज़ीर आज़म है, लेकिन उसके पास भी ऐसा नहीं होगा। अभी हम उनको बाकी क्या अदा करें बताएं। मरियम नवाज साहिबा भी ये वाला लाइसेंस नहीं रखती, यानी कि वो ट्रक नहीं चला सकती? नहीं, ऐसी शक्ल का उसके पास भी नहीं है ना। ये इस शक्ल में मोटरवे, मोटर कार का और साइकिल का और लाइसेंस हर किस्म का हर किसी के पास होता है। तो लेकिन आपको चालान किस चीज़ का किया जाता है? क्या क्या आपके बच्चे इस चीज़ पर चालान करते हैं तुम पाकिस्तान में पैदा क्यों हुए हो, बस हमें इस चीज़ पे और कुछ भी नहीं। अमेरिका में पैदा हो जाना था ना, आप पाकिस्तान में हम ही हो गए फिर। तो हम अमेरिका में अगर कैसे पैदा होते? हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान हमने बनाया है। इन लोगों को हथियार मिला है ना, हमारी कुर्बानियों से पाकिस्तान मिला बना है। तो ये अभी इनको आपका क्या मुतालबा है? मरियम नवाज साहिबा को क्या मुतालबा करना? हमारा मुतालबा है कि चालान करें, जायज़ चालान करें, नाजायज़ हमारे साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। गाड़ियों का जो इन्होंने वज़न का इशू रखा हुआ है बिल्कुल जायज़ है। जो बोलते हैं डमर ना हो वो बिल्कुल जायज़ है, लेकिन चलते चलते हमको रोक कर हमारा चालान किया जाता है। मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें गाड़ियों के 52,000 रुपये जुर्माना है, 1 लाख रुपए गाड़ी का जुर्माना है, 15,000 है, 10,000 है। मुख्तलिफ जुर्माने उन्होंने किए हुए हैं। कागजात मुकम्मल है और हमारा काम है सूफी कौम के साथ। गाड़ी के अंदर ही माल होता है, ठीक है, उसके बाद तो जाता नहीं है। अभी उस दिन गाड़ी वाले ने नमक लोड किया हुआ था 10 टन। उन्होंने बाद में जनाब FIR का काट दी है कि यार ये तो ओवरलोड है। नमक की कभी ओवरलोड हुआ है? ये भी सोचने वाली बात है ना। गाड़ियाँ 50-50 गाड़ियाँ लोड करके नमक आती हैं। कभी बाडी के बाहर आपने देखा है कि नमक बाहर है गाड़ी के?
तो यही बात है ना, ये इनको सोचना चाहिए, ये हमारे साथ कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि यार जिनके पास कागजात मुकम्मल हैं, जिनके पास गाड़ी के अंदर माल है, उनको तो नहीं ना जुर्माने करने चाहिए। चलो गाड़ी के बाहर जाए अगर माल है उनको जुर्माने करें, बाकी कुछ कागजात के हैं, ये रूट वगैरह है, ये पहले 7,000 रुपये हमारा रूट बनता था, अभी 21,000 रुपये का बन रहा है। ये भी इन्होंने बहुत जुल्म किया हमारे ऊपर, ट्रांसपोर्टर के ऊपर, इसलिए हमारी ये हड़ताल है। ये अभी तक कोई कन्फर्म नहीं है कितने दिन चलेगी, 4 दिन चलेगी, 10 दिन, जब तक ये हमारा कोई मुतालबात नहीं पूरे होते तब तक ये हड़ताल चलेगी। ये लाइटें लगाई हैं हमने धुंध के लिए, फोक के लिए, ठीक है। ये लाइटें मोटर वाले कहते हैं जी लगाओ, बैक पे भी लगाओ और फ्रंट पे भी लगाओ। ये लाइटें नहीं लगी होती, वो जुर्माना कर देती हैं। और जो नीचे ट्रैफिक वार्डन वाले हैं या दूसरी ये जो फोर्स है, ये जो ये आजकल पीरा फोर्स ये दूसरे वगैरह जो है डॉल्फिन वगैरह, वो कहते हैं ये क्यों लगाई हैं, जायज़ लगाई हैं। अगर गाड़ी के कागजात पूरे हैं, ड्राइवर के पास लाइसेंस है, सारा कुछ है, ये लाइटों का इशू आ गया। सीट बेल्ट भी बांधी भी है। फिर ये आपका मज़दा 16 फुट क्यों है, इसको 14 फुट करवाएं, इसको 15 फुट करवाएं। 16 फुट ऊंचाई का कह रहे हैं? नहीं, लंबाई का लंबाई का आप कैसे कम करेंगे? नहीं ना कर सकते, लंबाई कम करेंगे, माल नहीं आएगा बीच में, कैसे कम करेंगे इसको। ये देखिए, ये गवर्नमेंट ने पास किए हुए हैं ना, गाड़ी फिटनेस के लिए गई है तो उसने सारा कुछ देख के फिटनेस का उसको सर्टिफिकेट दिया ना। ये तब क्यों नहीं वहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाते? बात तो इस चीज़ की है। फिर पुलिस वाले रोक के तंग करते हैं, जायज़ जुर्माने कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जो जुर्माने हो रहे हैं, मैं ये नहीं कहता जो जायज़ है वो करे, जो नाजायज़ है वो ना करें। अच्छा, मुझे और बताइएगा, और किस चीज़ के ऊपर आपको जुर्माने होते हैं? मतलब हमें जुर्माने ज़्यादातर ये देखे ना, ये मैंने आपको बताया, कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा देनी है उन्होंने। किसी के ऊपर एक ऑब्जेक्शन लगा के उसको 7,000 का कर दिया, किसी पे 2 लगा के उसको 15,000 कर दिया, किसी पे 4 लगा के 22,000 का कर दिया। ऐसे जो जुर्माने हो रहे हैं आजकल, इतने जुर्माने से। आपकी ये जो गाड़ी खड़ी हुई है इस टाइम, आपके लिहाज से ये पूरी है, इसको कोई किसी किस्म का कोई चलान नहीं होना चाहिए इसके नहीं ऊपर? होना चाहिए चलान। क्यों होना चाहिए? वजह, उसके चलान की वजह कोई नहीं है, लेकिन फिर भी चलान होने, पकड़ के चलान, नजायज़ चलान कर रहे हैं ना, बेमकसद चलान कर रहे हैं। ये आपने बाडी से थोड़ा सा बाहर माल क्यों किया हुआ है, ये अंदर क्यों किया हुआ है, ये वजन क्यों ज़्यादा डाला हुआ है। अब एक गाड़ी 10 टन पास है, गवर्नमेंट के कागजों में 10 टन पास है, उसने 10 टन वजन लोड किया हुआ है, फिर उसका जुर्माना हो रहा है। कोई ना कोई दूसरी ऑब्जेक्शन लगा देंगे, ये बैक बत्तियाँ क्यों नहीं जा रही, ये ऐसे क्यों हुआ है, ये गाड़ी की बॉडी क्यों भरी है, इस वजह से ये चीज़ें हो रही है सारा कुछ। इस वजह से तो जुर्माना नहीं कर रहे कि आप हक हलाल क्यों कमा रहे हैं, इस वजह से जुर्माना है कोई? यही वजह, ये हक हलाल क्यों कमा रही है, सारी वजह यही है। वो आवाम को ना दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, जैसे कि नजायज़ करे आवाम। जो ट्रैफिक पुलिस के पास चलान बुक होती है एक, उसके अंदर आपने कोई खाना देखा है कि उसके ऊपर लिखा हो कि हक हलाल कमा रहे हैं, इस वजह से आपको 15,000 रुपये जुर्माना दे रहे हैं? ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ ना, ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं होना, कि सीट बेल्ट नहीं बांधी होनी, बस ये 2 काम हो सकते हैं। अगर करना है 2,000 कर लें, 1,000 2,000 जो समझ में आए, जो बर्दाश्त हो, हुकूमत तो बर्दाश्त। ये 15,000 रुपये तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर हुकूमत आपके मुतालबात नहीं मानती तो गैर मुय्यना मुद्दत कितनी देर तक आपके हिसाब से हो जब सकती तक है? नहीं मानेंगे, 8 दिन गुजर जाए, 5 दिन गुजर जाए, 6 दिन गुजर जाए, 4 दिन गुजर जाए, जब तक ये नहीं हमारी बात मानेंगे, हमने खरी की हुई है गाड़ी, 6 महीने ना माने फिर नहीं चलाएंगे। फ़ायदे नहीं हो रहा किसी चीज़ का, जब एक चीज़ का फ़ायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है, फिर इसको काम करने का मकसद ही कोई नहीं, फिर हम बंद कर देते हैं। नाजरीन, ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टर किसी भी मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी होते हैं, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि ट्रांसपोर्टर के मुतालबात को फिलफोर हल करे ताकि पाकिस्तान का निज़ाम चल सके। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। टॉक इज लाइव, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोले। टॉक इज लाइव।